कम करंट फ्लो होगा, लेकिन कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। सो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट वाज ओम, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट विल बी 1 अपॉन ओम, दैट इज ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स। और इसको एक और नाम दिया है साइन में कोई रीड करता है और उसको सिंबल इज कैपिटल एस। क्लियर? प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नाउ वी नो ओम्स लॉ स्टेट करते वक्त आई हैव टोल्ड यू व्हाट ओम्स लॉ स्टेटमेंट क्या था? V upon I is equals to a constant which is equals to R. This was our Ohm's law. That means if I plot a graph of I versus V, V on my x-axis and I on my y-axis, I'll plot a graph like this. I upon V होएगा ना, V upon I हाँ? R is equal to I upon V ना? V equal to R. V equals to I, R equals to V upon I करेंगे। ठीक है? So this will always be a straight line because constant है ना। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो x एक्सिस है। ऐसा नहीं होता है। नहीं, x एक्सिस में वो रहता है which is independent and y एक्सिस में वो रहता है जो x एक्सिस के टर्म के ऊपर डिपेंड होता है। Now voltage V जो है that I supply using my cell or battery, है ना। I can change, मैं अलग वोल्ट का सप्लाई 9 वोल्ट का बैटरी ले सकती हूँ, 1.5 वोल्ट का बैटरी ले सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट मैं करंट विल बी डिफरेंट। सो दिस इज बाय एक्सिस। कभी भी फिजिक्स और मैथ्स में हो, बाय एक्सिस विल बी ऑलवेज द डिपेंडेंट एक्सिस व्हिच वेरीज एज पर माय एक्स एक्सिस का जो भी टर्म ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस V upon I is always constant, therefore this line will be like this only, always. ठीक है? Okay. Now slope of this line will be what? X1 Y. Slope is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. मतलब y axis upon x axis की टर्म आ रहे हैं, so that means slope of this graph is delta I. Delta I means y2 minus y1 upon डेल्टा V। I upon V, अगर V upon I R है, I upon V will be what? 1 upon R। 1 upon R, that means it will be conductance. So slope of this graph is giving me what? The value of conductance. Okay. Ohm's law का limitation कब आ जाता है? If the physical condition of the conductor changes, just like its thickness या length ये change कर दिया, या फिर if the temperature of my conductor changes, then in that case Ohm's law doesn't hold. Ohm's law वहाँ पे effective नहीं होगा। तो effective होने के लिए it should be same physical condition as well as the same temperature. Clear till this? Yes. Okay. So moving ahead. दो चैप्टर्स हैं इसके नाम। Okay. मैंने बताया what are conductors, what are insulator? Insulators. What are insulators? What's the principal जा रहा है? अंदर घुसने को जा रही है, इधर से बैठ जाता। Okay. What are insulators? जो प्रोवाइड करते हैं। Do not allow current. Sorry, do not. Insulators are those elements, those material that do not allow electricity to pass through it. इसलिए तो हम लोग वायर के ऊपर एक insulating layer of ये लगाते हैं, blue color, yellow color जो भी रहता है, प्लास्टिक या फिर कुछ ऐसे material, right? So what insulator are those material which do not allow current to flow through it. That means it does not have more free electrons. Free electrons होंगे तो फिर current pass होगा, free electrons अगर नहीं है ज़्यादा तो current flow नहीं होगा। ठीक है? Okay. Now ohmic and non-ohmic resistors. तुम अभी जो अलाउ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? Conductors. Ohmic resistor. The conductors which obey the Ohm's law are called ohmic resistors. For example, all
ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. सो दे आर ओमिक कंडक्टर्स. नाइट्रोम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ये आप लोगों ने इसमें पढ़ा रहेगा केमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोड्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा रहेगा या फिर रिएक्शन में सॉल्यूशन लेता है इसमें बीकर में एंड वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, राइट. सो उस सब केस में भी हम लोग के पास ओमिक रेजिस्टर आ जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. फॉर सच रेजिस्टर्स अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V अगेंस्ट करंट I इज स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ किया. लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या है? The conductors which do not obey, even though they are conductor, but they do not obey the Ohm's law are called the non-ohmic resistor. For example, LED. LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड. डायोड क्या होता है पता है? डायोड है ना वो. LED है, सोलर सेल है, जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये सब जो है ना दे आर नॉन ओमिक रेजिस्टर्स. ठीक है. अभी डायोड क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो नेचुरल कंडीशन में वो कंडक्ट नहीं करता, बट उसको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा तो इट विल कंडक्ट. जैसे उसको हीट के करने में वो कंडक्ट करेगा. कोई सेमीकंडक्टर को कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही कंडक्ट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर्स को यूज करके वी मेक दिस डायोड, LEDs, वी मेक सोलर सेल. ये सब जो बनाते हैं वो सेमीकंडक्टर्स को यूज करके बनाते हैं. इसका एक पूरा अलग से एक पूरा क्या बोलते सब्जेक्ट है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाओ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट ही है. सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक खाली नहीं 2-3 सब्जेक्ट बहुत डीप. और वो अभी आजकल सब जगह पे आप जो मोबाइल के अंदर भी चिप और ये वो सब देता है ना, या फिर जो सर्किट्स देते हैं, एवरीथिंग देयर वी हैव सेमीकंडक्टर. एंड सेमीकंडक्टर्स को फैब्रिकेट करने के पर्टिकुलर ऐसे फैब्रिकेटिंग ये रहता है. वो ऑलरेडी हम लोग बनाते ही उसको बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं. पहले उसको एक लेयर बनाते हैं, फिर उसको एचिंग करते हैं, ये करते हैं, तो बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद एक चिप. फिर उसके ऊपर भी ऐसा कंडीशन है कि वी कैन प्रोग्राम सम चिप, वी कांट प्रोग्राम सम चिप. सम आर प्रोग्रामेबल, सम आर वन टाइम प्रोग्रामेबल. एक बार प्रोग्राम कर दिया तो फिर वही कंटिन्यूस चलता है. समटाइम सम आर डी प्रोग्रामेबल. एक बार प्रोग्राम करो उसको इरेज करके फिर से प्रोग्राम करो. Such chips are also there. ठीक है. So they all are made up of what? Semiconductors. So for this conductors क्या है? Graph is something like shown in your textbook 8.6. Figure 8.6 here. So in that you can see graph is not a straight line, it is a curve. Curve like this. अभी भी हमारा ग्राफ में क्या बनेगा? यहाँ पे करंट और V. यहाँ पे लोगों ने इसको इंडिपेंडेंट बनाया और दिस इज डिपेंडेंट. इस सेमीकंडक्टर है तो करंट के हिसाब से वोल्टेज भी चेंजेस हो सकते हैं. सो दिस विल बी ग्राफ इज लाइक. ठीक है. अब एट पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर करंट पे कितना वोल्टेज है कैसे फाइंड करेंगे? बाय फाइंडिंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. इफ आई नीड टू फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट एट दिस करंट, so we'll draw a tangent at that point. वो tangent का slope जो भी रहेगा that will be the current voltage at that point. ठीक है. इतना deep है आप लोगों को है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ. For the ohmic resistor, it is necessary that the straight line on VI graph passes through the origin. But for a non-ohmic resistor, it is not necessary कि वो origin से pass हो. ठीक है. अब distinction between ohmic and non-ohmic resistor. Of course, name से पता है. First point, it obeys the Ohm's law. Non-ohmic resistor won't obey the Ohm's law. Graph of the potential difference versus current is a straight line passing through the origin, whereas non-ohmic resistor में it is a curve, not necessary to pass through the origin. Slope of PI graph is same at all value of E or I. Whereas slope of PI graph is different at different values of E or I. और फिर example. ठीक है. Factors affecting the
important है. Factors affecting the resistance of a conductor. So first factors resistance of a conductor. ठीक है? मैं काम करती हूँ फैक्टर्स बताने की जगह पे पहले मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देती हूँ तो तुम लोग खुद से फैक्टर्स बताना होगा. ठीक है? So it is resistance R equals to rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor. अब resistivity is the material का property. अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है. इट डिपेंड्स कि आपके उस मटेरियल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे आप लोगों ने पढ़ा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो जितना ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए रहता है, तो अगर 8 होने के लिए वो इजीली यूज कर सकता है, मीन्स उसके पास उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट उसके ऊपर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस. It depends on the material. Different element, different material have different resistivity. So first point is rho, which is depending on the resistivity. That means it depends on the material of the conductor. Second is L. L is length of the conductor. अब बड़ा कंडक्टर लिया, लेंथ बहुत बड़ा है, तो जितना लेंथ है उतना ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, उतने ज़्यादा आयंस रहेंगे उसमें, उतना ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. तो इट विल बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर रेजिस्ट लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादा रेजिस्टिविटी उधर मिल जाएंगे, ज़्यादा आयंस होगा. रो और लेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, दोनों डायरेक्ट. रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ गया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ये बता. A is area of cross section. That means आप बोल सकते हो it is the thickness of that wire. हाँ? It is inversely proportional. अगर समझो मेरे पास दूसरा छोटा सा thickness वाला वायर है, ठीक है? तो फिर सारे इधर आयंस कितना है पास करेंगे, सो कोलिशन ज़्यादा होगा, सो देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस. बट अगर मैंने बड़ा वाला ले लिया तो यहाँ पे स्पेस छोड़ के आयंस तो लेस कोलिशन रहेगा, सो रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा. देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये 3 पॉइंट तो हो गए, फॉर्मूला से मिल जाएगा. और एक लास्ट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ठीक है? सो 4 पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द ज़्यादातर तो नॉर्मल के लिए बट अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर बेसिकली अपना ओम्स लॉ भी चेंज हो जाएगा. ठीक है? So resistance are dependent on this 4 properties. क्या है? First is material of the conductor. Resistivity मतलब material of the conductor. Second is the length of the conductor. Third is area of cross section, that is thickness of the conductor. And temperature of the conductor. याद रह जाएगा? ठीक है. यहाँ पे R का तो यूनिट पता है, लेंथ का यूनिट पता है, A का यूनिट पता है, रेजिस्टिविटी का इसके टर्म्स में हम लोग निकालते हैं. वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है? So that is points are given. Dependence on the temperature कैसा है वो भी बता देती हूँ. With increase in temperature of a conductor, the random motion of electron increases. As a result, the number of collision, जब random motion of electron increase हो जाएगा तो number of collision भी बढ़ जाएंगे. So number of collision of electron with positive ion increase हो रहा है, मतलब क्या हो गया? Resistance will be more or less. Collision ज़्यादा हो गया तो more होगा कि कम होगा? More होगा ना? Yes. So hence the resistance of collision कम होगा. collision ज़्यादा होगा. ज़्यादा
So as the temperature increases, the resistance of conductor also increases. ठीक है? So this इसके लिए भी directly proportional. Clear till this? Okay. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वायर है, मतलब एक सिलिंड्रिकल है, तो क्रॉस सेक्शन कौन सा शेप रहेगा? एक सर्कुलर शेप है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का पाया स्क्वायर है, तो आई कैन राइट इट विल बिकम रो एल अपॉन पाया स्क्वायर. तो आर क्या रहेगा? इट विल बी द रेडियस ऑफ द कंडक्टर जो पाएगा. क्लियर? ओके. नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, उसके बारे में बता. रो को यहाँ पे रेजिस्टिविटी के जगह पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम है. Same name given to different name given to same problem. So इसका definition क्या है? Specific resistance of a material is the resistance of a wire of that material of unit length. अगर L1 है and cross section area भी 1 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? Rho equals to R हो जाएगा. So resistivity of the material is equals to resistance of the conductor for unit length and unit area of cross section. ठीक है? समझ में आ गया? ओके. यूनिट बता देते हैं. SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ये लेके आती हूँ. Rho equals to R A by L हो जाएगा. रेजिस्टेंस का इज ओम, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इज इन मीटर. So this will cancel off ohm. This is the unit of specific resistance or resistivity. Here. Okay. Now factors affecting the specific resistance क्या है? The specific resistance of the system is substance is its characteristic property. मतलब वो अलग मटेरियल के अलग अलग हो सकता है. It is different for different substances. एक चार्ट दिया है टेक्स्ट बुक में जिसमें स्पेसिफाई किया अलग अलग मटेरियल का कितना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. ठीक है? The specific resistance of a substance depends on its temperature. It increases with increasing temperature for metals, but it decreases with increasing temperature for semiconductor. तो semiconductor में temperature increase होने में resistivity कम होता है. इसके वजह से वहाँ पे temperature increase होने में resistance भी कम हो जाता है. इसलिए मैंने बोला कि semiconductor high temperature में वो conduct होने को start होगा. जब normal temperature it is not conducting. But when it is temperature, एक particular temperature मिल जाएगा, so it will start to conduct. The choice of material of a wire. Wire का कैसे choice होना चाहिए? वो तो आप मुझसे बता दो. कंडक्टर हाँ. और connection and for transmission should be least possible resistance. मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, means resistance should be low as low as possible. Least possible resistance. अगर उसका रेजिस्टेंस हाई हो गया तो उधर ही वो यूज कर लेगा, करंट जो भी आ रहा है वो उसको ही ओवरकम, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाएगा. इट डिपेंड कि तुम्हारा किसको क्या लोड है. कोई लोड में इतना करंट नहीं चाहिए, किसी लोड में तो थोड़ा सा करंट. जैसे एलईडी जो है, आप लोगों को प्रोजेक्ट अभी दिया है ना सिंपल सर्किट बनाने को. अगर सिंपल सर्किट में आप खाली एलईडी यूज करते हो, नॉर्मल जो 5 रुपये वाला जो अपना वाला एलईडी ले लोगे, and if you connect it with 9 volt battery, maybe there is chance कि वो LED drop हो, क्योंकि उसको इतना करंट नहीं चाहिए. ठीक है? सो अगर आप ले रहे हो LED तो हाई वाला लेना, हाई mm वाला LED नहीं लेना आपको प्रोजेक्ट के लिए. बोल रहा है? So if the due to low resistance of connecting wire, the current in circuit remains unaffected and the loss of energy due to heating is prevented.
whenever there is high resistance, उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, करंट इन सबके डिमेंस आने पड़ता है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग इज प्रिवेंटेड, हेंस दे आर मेड ऑफ मटेरियल सच एज कॉपर और एल्यूमिनियम। तो लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस में हम लोग उसको कॉपर या एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम थोड़ा चीपर इसलिए ज़्यादा वो यूज करते हैं, कॉपर इज मोर, ठीक है। The specific resistance of silver is less than that of copper of aluminum or aluminum. हम लोग क्यों नहीं यूज करते, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? Specific resistance कम है, but because of its high cost, silver is not used. Cost effectively होने के लिए हम लोग silver नहीं यूज करते। The resistance of wire, second point है, wire are of high resistance and their resistance must not change due to change in temperature. The resistor by standard resistor. अच्छा, पता है standard resistor क्या होता है? एक particular वायर दिया जाएगा जिसका हमको exact resistance value मालूम है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं standard resistor। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग को एक पर्टिकुलर लोड या किसी चीज़ का रेजिस्टर फाइंड करना होता है, तो उसको हम जब भी फाइंड करना होता है वी कंपेयर इट विद द, जैसे हम लोग बीम बैलेंस में क्या करते हैं, एक का वेट फाइंड करना है तो दूसरे साइड में हम लोग को जो नॉन वेट है वो रखते हैं ना, वैसे ही रेजिस्टर में इफ आई नीड टू फाइंड वन अननोन रेजिस्टर, आई कंपेयर इट विद नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टर, एंड द रेजिस्टेंस वायर, सच वायर्स आर मेड